Hello everyone, myself Mohammad Mudassir. Today I am going to teach economics for class 11th commerce. So 11th economics divided into two parts. So first part is statistics for economics. Statistics for economics. This is the first part, and second part is microeconomics. First part is the statistics for economics and second part is microeconomics. So they are divided into two part economics for class 11, statistics for economics and microeconomics. And 40 marks question statistics for economics and 40 marks question in the microeconomics. So total marks is the 80 marks plus 20 marks is the practical. So total is the 100. इकोनॉमिक के क्लास 11 में टू पार्ट हैं. फर्स्ट स्टैटिक फॉर इकोनॉमिक्स एंड सेकंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो स्टैटिक फॉर इकोनॉमिक्स में 40 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, और एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी 40 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं. तो टोटल 80 मार्क्स की थ्योरी होती है क्या क्लास 11 में एंड 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है. तो सो टोटल इज 100. सो टुडे I will discuss about statistics for economic subject. So first of all, today I discuss is introduction. So introduction में first is economic goods. Economic goods. So what is the economic goods? Goods which are command a price are called economic goods. Goods which are called command a price are called economic goods. For example, wheat, car, furniture, tea, milk, sugar, service of a teacher or doctor. So this is the economic goods. This is the example of economic goods. And second is non-economic goods. Second is non-economic goods. Goods which are available in plenty and do not command any market price is called non-economic goods. For example, air, sunshine and rain. This is the non-economic goods. So economic goods क्या होते हैं? जिनकी मार्केट में एक मार्केट प्राइस होता है, और फॉर एग्जाम्पल व्हीट, कार, फर्नीचर, टी, मिल्क एंड शुगर. एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं? जो जिनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. दिस इज द नॉन इकोनॉमिक गुड्स. और मार्केट प्राइस पे इनका कोई भी कमांड नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल एयर, सनशाइन एंड रेन. सो दिस इज द नॉन इकोनॉमिक गुड्स. सो नेक्स्ट इज who are consumer. So those person who consume goods and service to satisfy his wants, this is known as consumer. So consumer and customer, there are two types, consumer and customer. Consumer वो होता है जो goods को directly consume करता है, जो satisfy होता है वांट से, और कस्टमर वो होता है जो गुड्स को परचेज करता है. सो कभी कभी कस्टमर ही कंज्यूमर बन जाता है. जैसे कोई एग्जांपल फॉर, हम एक शॉप पे गए और एक हमने कोई गुड्स खरीदा फॉर एग्जांपल फॉर मैगी लिया और उसको हमने कंज्यूम कर लिया, तो हम कस्टमर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं. बट अगर हमने मैगी परचेज किया और किसी और को सेल कर दिया तो हम कस्टमर हैं, और जिसने उसको कंज्यूम किया वो हो गया कंज्यूमर. सो नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर. हु आर प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर इज अ पर्सन हु प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चरर गुड्स टू जनरेट इनकम. प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर करता है और उससे अपनी इनकम को जनरेट करता है. दिस इज नोन एज प्रोड्यूसर.
And next is service holder. A person who in a job to earn wages and salary. Wages means mazdoori. A person who in a job to earn wages or salary. This is known as service holder. And next is service provider. जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं. A person who provides service to the society and to earn money. This is known as service provider. For example, doctor, lawyer. This is example for service provider. And banker. तो सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं? जो हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं. जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी सर्विस हमको प्रोवाइड करते हैं, सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं. लॉयर है, वो भी अपनी एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमको. एंड नेक्स्ट इज सेविंग. सो व्हाट इज द सेविंग? दिस इज अ पार्ट ऑफ इनकम एंड नॉट कंज्यूम. दिस इज अ पार्ट ऑफ इनकम एंड नॉट कंज्यूम. दिस इज नोन एज सेविंग. सेविंग एक हमारे इनकम का एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम कंज्यूम नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारी सैलरी 10,000 है और 10,000 में से हमने 8,000 एक्सपेंस कर दिया, तो 2,000 जो हमने एक्सपेंस नहीं किया, सो दिस इज नोन एज सेविंग. फॉर एग्जाम्पल, मंथली सैलरी हमारी जो है वो है 10,000 और हमने कंज्यूम कर दिया 8,000, तो 2,000 जो लेफ्ट है ये हो गई हमारी सेविंग मंथली. So next point is, what is the investment? So investment is that economic activity which is concerned with production of capital goods for further production of goods and service. This is known as investment. So investment एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको हम इन्वेस्ट करते हैं. किसके लिए? कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, प्लांट. इस पे जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं किस लिए? ताकि उसकी फ्यूचर में उससे हमारी इनकम जनरेट हो. सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट इज कंप्यूटर. इन्वेस्टमेंट इन कंप्यूटर टू प्रोवाइड इंटरनेट, बैंकिंग एंड रिलेटेड सर्विस. इसका एग्जांपल है, अगर हमने इन्वेस्ट किया कंप्यूटर में तो प्रोवाइड इंटरनेट एंड बैंकिंग रिलेटेड सर्विस. वो सारी सर्विस प्रोवाइड करता है. उसके अलावा इंटरनेट एंड बैंकिंग टू रिलेटेड सर्विस. नेक्स्ट है एक्सचेंज. एक्सचेंज का मतलब हम सब जानते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटीज. सेल्स एंड परचेज ऑफ कमोडिटीज. दिस बाइंग एंड सेलिंग मोस्टली डन इन द टर्म ऑफ मनी. Selling and buying, the selling and buying commodities and with the exchange of money. गुड्स को सेल करना, परचेज करना और उसके बदले हमको मनी रिसीव करना, एक्सचेंज करना. दिस इज नोन एज एक्सचेंज. एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स. So what is the definition of economics? Definition is, economics an inquiry to in the factor that determine the wealth of the country and its growth. This is known as economics by Adam Smith. So who are Adam Smith? This is the father of modern economy. नेम इज एडम स्मिथ. तो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दी है वो एडम स्मिथ ने दी है, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी कहते हैं. जिन्होंने वेल्थ के बारे में बताया. वेल्थ मीन्स होता है संपत्ति के बारे में बताया है. और दिस इज द मेन पॉइंट कि इनकी जो मीनिंग है वो वेल्थ से ही रिलेटेड. सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स. So static is a numerical statement and place relation to each other and inquiry to each department. So this is known as statistics. And statistics are aggregate fact.
a single observation, not a statics. For example, pocket expense of Amit during a month is rupees 50. So this is not a statics, because this is a single observation. And Anil, Sunil, Raj monthly pocket expense are 50, 55, 65. So this is a statics. So स्टैटिक हमको ये बताता है कि अगर किसी एक सिंगल पर्सन का ऑब्जर्वेशन करना हो तो वो स्टैटिक्स नहीं कहलाता, जब तक कि उसमें एक से ज्यादा दो लोगों का ऑब्जर्वेशन ना किया जाए वो स्टैटिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे एक सिंगल पर्सन का अगर हमने ऑब्जर्वेशन किया था अनिल का, कि अनिल की मंथली जो एक्सपेंस थी वो 50 रुपीज थी, तो ये स्टैटिक्स नहीं होगा क्योंकि इसमें कंपेयर किया जाता है। और अगर ये तीन पर्सन आ गए 55, 50 या 65, अनिल, सुनील और राज का, तो दिस इज स्टैटिक्स। एंड नेक्स्ट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। दिस इज ये स्टैटिक्स ऑलवेज द न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। फॉर एग्जांपल, दिस इज वेरी बैड and this is very good, not a statics, because this statics is numerically statement या numerically expressed. For example, 40 student in first division, 50 student in second division, and 10 student is the third division. So this is a statics. तो statics जो है किसी की क्वालिटी नहीं बताता कि वो गुड है कि बैड है। स्टैटिक्स हमेशा जो है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होते हैं और जो हमेशा न्यूमेरिकली टर्म में ही उसको रीड करते हैं और उसके आंसर बताते हैं। एंड नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक मैनर। स्टैटिक्स हमेशा जो है वो सिस्टमैटिक मैनर से होता है। दे मस्ट बी कलेक्ट सिस्टमैटिक मैनर। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is a systematic manner. So this is clear for the what is the statics, and next video discuss about the limitation of statics and importance of statics.